इस साल राइस विला फेस्टिवल सीजन 9 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया गया है, रॉबिन हुड आर्मी और फूड एटीएम, जो नया तरीका है फूड वेस्टेज रोकने के लिए। बताया गया कैसे कैसे तरीके से हमारा भारतवर्ष में खाद्य की बर्बादी होता है, कैसे उसे रोका भी जाता है। ये प्रयास भी किया है और सोशल मैसेज भी दिया है राइस विला के सीईओ सूरज अग्रवाल जी ने। हम दिखाएंगे पूरा न्यूज़, आप देखिए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फ्री सब्सक्राइब कीजिएगा। Welcome to Multilingual Sky News. Here is हिंदी सेगमेंट। भोजन की बर्बादी रोकने का राष्ट्रीय आह्वान किया राइस विला। स्टॉप फूड वेस्टेज, बी राइस्पॉन्सिबल। क्योंकि हर कोई राइस्पॉन्सिबल होगा तो भारतवर्ष में सबके लिए राइस पॉसिबल होगा, सबके लिए राइस मुमकिन होगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं होगा। जिनके पास माँ की ममता हो, माँ की आशीर्वाद हो, तो वो अवश्य होगा कामयाब। दुनिया में पहला एडुकेटर और टीचर जैसे माँ होते हैं, ऐसे ही हर सक्सेसफुल आदमी के घर पर माँ का मंदिर होता है। अगर माँ जिंदा होता है तो माँ का आशीर्वाद उनके सर पर होता है। राइस विला के सूरज जी और अग्रवाल ब्रदर्स के सुपर सक्सेस के पीछे माता श्री ललिता देवी जी का आशीर्वाद और वरदान है। हम कुछ बात सुनेंगे माता श्री ललिता देवी से। देखिए स्काई न्यूज़ हिंदी सुपर एक्सक्लूसिव, कैमरा में जर्नलिस्ट चिरंजीव। We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. Your cell phone is actually ringing. রাইস মিলা তো এরকম কোম্পানি আছে যে সবাই রকমের রাইস ব্র্যান্ডকে মার্কেটিং করে। আমাদের ইন্ডিয়াতে সবথেকে হাইয়েস্ট ভ্যারাইটি অফ রাইস ব্র্যান্ড আছে। আজকে রাইস মিলা উৎসবে আমরা একটা নতুন মেসেজ ইন্ডিয়াকে দিতে চাই। আমরা দেখেছি কি হাইজেনিক রাইস আছে, সবই এক একটা প্রবলেমকে আমরা সলভ করছি না। এবছর ওয়েস্টেজ অফ ফুড, যা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আছে ইন্ডিয়াতে, ওকে আমরা সলভ করতে চাই। যেরকম আপনাকে একটা ডেটা বলি,
ভারতে যত খাওয়া দাওয়া প্রত্যেক বছর ওয়েস্টেজ যাচ্ছে, ওর মধ্যে আপনি একটা বিহারকে পুরো খাওয়াতে পারেন, কত ওয়েস্টেজ প্রত্যেক বছর যাচ্ছে। তো আমরা সেই জন্য একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, বি রাইস পসিবল। বি রাইস পসিবল এই একটা ব্র্যান্ডিং করেছি, কেন একটা ক্যাচ ওয়ার্ড চাই, ডু নট ওয়েস্ট ফুড। সেই জন্য আমরা কি করছি, পুরো দেশের সঙ্গে আমরা রবিনহুড আর্মিও এসেছে, ওনার সঙ্গেও আমরা কন্ট্রাক্ট করেছি কীরকম ফুড ওয়েস্টেজকে কম করতে পারি। আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সঙ্গেও কন্ট্রাক্ট করেছি কীরকম ফুড ওয়েস্টেজকে কম করতে পারি। এই জন্য আমরা ফাইন্ড আউট করেছি, স্টাডি করে 3 লেভেল আছে যেখানে আমরাকে ফুড ওয়েস্টেজ কম করতে হবে। ফার্স্ট লেভেল আছে এট দ্য ওয়্যার হাউসিং অ্যান্ড সাপ্লাই চেন, যেখানে ফুড র ফুড ওয়েস্টেজ ফুড সব দিকে ज़्यादा হচ্ছে। রাইস গোডাউন আছে, ডাল গোডাউন আছে, ফুড গোডাউন আছে। সেকেন্ড আছে যার গ্যাদারিং হচ্ছে, বুঝুন কোথায় বিয়ে হচ্ছে, হোটেল আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, ক্যাফে আছে। এই লেভেলে আমরা দেখছি কি যত খাওয়া দাওয়া বাড়ছে 20% ফুড অ্যাট হরেকা ইজ গেটিং ওয়েস্টেড। থার্ড পয়েন্ট আপনি দেখবেন তো আপনার সবার হাউস হোল্ডে আমরা যা খাওয়া দাওয়া বানাচ্ছি, আপনি একটা অ্যাভারেজ ডেটা দেখবেন তো প্রত্যেক দিনে 50 কিলো অফ ফুড ইজ গেটিং ওয়েস্টেড অ্যাট হোম। আমরা কি করছি, এটা 3 লেভেলে ডিফারেন্ট লেভেল অফ সোশ্যাল মেসেজ পাঠাচ্ছি, আমরা ফুড এটিএম তৈরি করছি কীরকম ফুড ওয়েস্টেজকে কম করা যায়। তো রাইস মিলার টার্গেট আছে কি একদিকে আমরা মাল বিক্রি করছি, বাট একদিকে আমরা কীরকম যা ওয়েস্টেজ হচ্ছে ওকে কম করে যে লোক খেতে পারছে না ওর কাছে আমরা কীরকম এই ফুডকে পৌঁছাতে পারি। আমার কত ছেলেগুলো আছে যা ফুড ওয়েস্টেজ খেতে পারছে না, আর আমরা আপনারা ওয়েস্ট করছি। এই জন্য একটা ইনিশিয়েটিভ রাইস মিলা নিয়েছে, বি রাইসপন্সিবল। অ্যান্ড রাইস মিলা একে স্প্রেড করতে চাইছে কি আপনি সবই মিলে এই ফুড ওয়েস্টেজকে কম করার জন্য একটা মেসেজ স্প্রেড করুন। কেন একজন আমি আমার ঘরে কম করতে পারি, আপনি আপনার ঘরে করতে পারেন, সেই রকমই 140 কোটি লোক কম করতে পারে, একজন কিছু একা কিছু করতে পারবে না। এই জন্য ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে বি রাইসপন্সিবল। রাইস মিলার মধ্যে আমরা যত অর্গানাইজেশন আছে, রিলায়েন্স রিটেল, জোম্যাটো, জেপ্টো, ফ্লিপকার্ট, স্পেন্সার, সব অর্গানাইজেশনকেও রিকোয়েস্ট করেছি যে আপনি আপনার লেভেলে ফুড ওয়েস্টেজকে কম করুন। কেন এসব যত কোম্পানি আছে এনারা আপনারা দেখবেন তো ওয়্যার হাউসিং অ্যান্ড সাপ্লাই চেনে ফুড ওয়েস্টেজ কিছু না কিছু তো হচ্ছে, একে কম কিছু কীরকম করা যাচ্ছে ও সলিউশন আমরা দিচ্ছি। আমরা এক একটা করে ওর উপরে ওয়ার্ক করছি কীরকম ওকে কম করতে পারি। আজকে পুরো দেশে আপনি দেখবেন ইভেন্ট যা হবে ও বি রাইসপন্সিবল ডু নট ওয়েস্ট ফুড রাইস মিলা उत्सव सीजन 9। आज अच्छा कर रहे हैं तो उनकी लाइफ बन रही है। मेरे को भी खुशी है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे से ज़्यादा मेरे भगवान की कृपा है उनके ऊपर। मैं अपने भगवान के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। क्योंकि पहला टीचर तो आप ही है, हर बेटा का पहला टीचर मम्मी ही होता है। लेकिन मेरे से बढ़कर मैं अपने आप को उतना महत्व नहीं देती जितना कि मैं अपने गुरु और भगवान को महत्व देती हूँ। वो सबसे बड़े, उनकी कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनकी विशेष कृपा है तब मैं कर पा रही हूँ। मेरे में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना। हाँ, ओके। मतलब सक्सेस के पीछे और मम्मी का ही हाथ होता है हमेशा ही। ठीक है, वो अपनी अपनी समय हाँ, का ठीक है, थैंक यू। And also, ladies and gentlemen, requesting all of you to kindly report inside the banquet as the celebration is about to start. जिस पल का, जिस घड़ी के हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है. This is the moment we all have been waiting for, the 9th most successful Rice Villa Utsav edition. तो मैं दरख्वास्त करूंगी जो लोग बाहर हैं जल्दी से अंदर आ जाएं. Let the celebration begin as हमारे बीच already आकर मौजूद है हमारी चीफ गेस्ट सम्राट राही जी.
we will be quickly commencing, and we want to do it with all of you all together with the Agarwal family and all the amazing Rise Villa family members. तो जल्दी से banquet के अंदर आ जाइए. For the most successful 9th edition, along with प्रकाश अग्रवाल जी और शेखर अग्रवाल जी और उनके माता श्री ललिता देवी जी, requesting all of you all to kindly light the candle and commence the evening. Everybody, come on! Rise Villa Utsav 2024, ladies and gentlemen. Celebrate everybody. Wonderful. Thank you so very much. एक बार फिर से हमारे चीफ गेस्ट को बहुत 15 SKUs of tea also, ladies and gentlemen. Come on, we are celebrating tonight. Well, yes. और इसी के लिए तालियां तो हम लोग बजाते हैं, आप लोग बजा रहे हो, मतलब मेरे बोलने से पहले ही बजा रहे हो और बिल्कुल बनता भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है ना, आज हम लोग यहाँ पे नाचने गाने वाले हैं, थोड़ा सा एनर्जी बिल्डअप करेंगे, तो मैं जैसे आप लोगों को दिखाऊंगी हैंड जेस्चर्स, आप लोगों को मेरे साथ करना है. इट्स जस्ट अ फन सेशन. करेंगे आप सब? यस. Small token of appreciation, thankfulness from our end. It's time to felicitate our chief guest, ladies and gentlemen. ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन्होंने हमें इतनी प्रॉपर्टी जिसमें हम बिजनेस कर पा रहे हैं. थैंक यू. इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं, बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है. और वो एक जो मेरा अनुभव रहा उनके साथ जो सीमित समय में, कि वो एक विजनरी लीडर हैं, बिजनेस लीडर हैं. और मेरा अनुमान है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में उन्होंने राइस विला को और उनके भाइयों ने नई ऊंचाइयों पे ले गए हैं, आने वाले दिनों में वो जिस तरह से IPO लाएंगे वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल IPO रहेगा. राइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल रीजन राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और यही वो एंटरप्रेन्योर हैं, वही बिजनेसमैन हैं जो इस ऊर्जा को, जो यहाँ के पोटेंशियल को पूरी तरह से हार्नेस कर पा रहे हैं, ताकि पूरे देश में वेस्ट बंगाल का राइस पहुँच सके, ना कि देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो हमारे पोर्ट के माध्यम से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो पहुँच सके. उनके इस बिजनेस से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई बिजनेस आइडियाज, जैसे वो आज की तारीख में देश के विभिन्न प्रदेशों के फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जो भी उसका अच्छा प्रोडक्ट होता है उसे वो एसिमुलेट कर रहे हैं और मार्केट में ला रहे हैं. इससे सारे देश को एक जो अच्छी क्वालिटी की राइस डिफरेंट प्रदेश की वो खाने को मिल रही है. उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो मुहिम चलाया है, बी रिस्पॉन्सिबल, ये एक बहुत ही अच्छा मुहिम है, क्योंकि फूड वेस्टेज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है. आप लोग भी देखते होंगे शादी विवाह में और इवेंट्स पे, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारा खाना वेस्ट होता है, और आप साथ ही देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सड़क पे हैं या बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें खाना नसीब नहीं हो पा रहा है. इसमें इनका बी रिस्पॉन्सिबल मुहिम ना ही राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये अप्रिशिएट किया जाएगा, और आने वाले कई वर्षों में इन्हें कई अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन और प्रसिद्धि मिलेगी. मेरी इनके साथ हमेशा ही शुभकामनाएं हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है और हमेशा सकारात्मक पॉजिटिविटी हर चीज़ में देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का सफल होना बहुत ही निश्चित है. कंपनी जो है एक बहुत बड़े कॉरपोरेट के रूप में परिणत होगी, और ये हमारी आपके साथ बहुत बहुत इच्छा है, और हम चाहते हैं कि आप बड़े बनो. विगत 7-8 सालों में मेरा आप सभी लोगों के साथ नाता रहा है, सभी भाइयों, तीनों भाइयों के साथ, और मैं शायद अकेला वो व्यक्ति हूँ
जो मुंबई से सुबह की प्लेन पकड़ करके अपनी नींद को छोड़ करके यहाँ पर अथक परिश्रम करके आता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि तीनों भाई उत्साहित होते रहे। उम्र में जरूर हमसे छोटे होंगे, तो मैं इनको आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कि ये दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति करते रहे। हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। मेरे ख्याल से जो दूसरा व्यापार के साथ साथ ये जो इन्होंने सोशल मैसेज दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें मेरे ख्याल से बहुत गिने चुने ऐसे उद्योगपति होते हैं जो सोशल कॉज को अपने बिजनेस के साथ एसोसिएट करके उसे बड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए मैं तीनों भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, और मैं जरूर चाहूँगा कि ये कंपनी और आगे बढ़ती जाए। आगे चल के आगे आने वाले 3-4 सालों में मैं ये चाहूँगा कि ये हॉल नहीं, आप 800-900 जो वाले हॉल होते हैं उसमें लाएं और हजारों लोगों को बुलाएं और सब आपके उन्नति पे तालियां बजाएं। फील कर रहा हूँ कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया और आपके इस कार्यक्रम में, हालांकि इससे पहले भी मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिली जब सूरज जी से मेरी बात हो रही थी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि इस बार के आयोजन का थीम है फूड वेस्टेज। और मैं आप सबसे इस मंच से कहूँ तो आपको लगेगा कि शायद ये बात बनावटी है, लेकिन मैं दफ्तर के 1-2 कलीग हैं यहाँ पर भी, वो जानते हैं कि फूड वेस्टेज मेरे लिए बहुत प्रिय विषय है। मुझे जब भी अवसर मिलता है, और आज भी मैंने कहा है, इससे पहले मैं दफ्तर में भी चर्चा किया हूँ कि सूरज जी से बात करके हम लोग फूड वेस्टेज पर उन लोगों के पास कुछ डेटाज फिगर्स हैं, हम लोग उसे लाएं और हम लोग उस पर कुछ जर्नलिस्टिक दृष्टि से कामकाज करेंगे। तो एक तो कि मेरे लिए जो बहुत प्रिय विषय है वो उन्होंने अपने इस बार के समारोह का थीम रखा है, और वाकई की एक बहुत बड़ी समस्या है कि फूड वेस्टेज को लेकर के मुझे लगता है कि हम सबको कंसर्न होना चाहिए। मैं तो आप सबसे अपील करूंगा कि आप जो जहां जिस अवस्था में है वहां ही इसे लेकर के कुछ काम करिए कि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नियंत्रित किया जा सके। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि इन तीनों भाइयों ने मिल करके कुल मिलाकर के राइस विला के जो अभियान है उसको लगातार वर्ष प्रतिवर्ष नई ऊंचाई पर ले गए हैं। मैं पिछले 2 वर्षों के कार्यक्रमों में सीधे आकर के शामिल हुआ हूं और देखते रहा हूं कि कैसे हर बार नए उत्साह के साथ आपके आसपास लोग जुड़ते हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो जुड़ते हैं, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स वो जुड़ते हैं, दूसरे जो आपके सहयोगी शुभचिंतक हैं वो आते हैं। इससे ये जरूर लगता है, मैं पिछले जैसे मैंने कहा कि 6-7 वर्षों से मैं भी जानता हूँ, सूरज जी से सबसे पहले संपर्क हुआ था, और तब से मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ कि राइस विला की जो जर्नी है वो कंटिन्यूसली आगे जा रही है। हर बार एक नई ऊंचाई पर उसे मैं पाता हूँ, और इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि अभी ठाकुर जी ने आप सबको संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में सैकड़ों करोड़ की कंपनी बने। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं डाउट की बात है। अगर ये तीनों भाई सभी मिलकर के एक साथ, इनकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है इन सबको, और हम में से भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो उनसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में ज़्यादा होंगे, ठाकुर जी ने अभी ये बात कही भी, हम सबका भी अगर उन्हें आशीर्वाद सहयोग मिले तो मुझे भी कहीं इसमें संशय नहीं दिखता कि ये कई 100 करोड़ की कंपनी देखते देखते बन जाएंगे। देश में यदि हम जितना राइस वेस्ट हो रहा है, यदि हम उसका कैलकुलेशन करें, 2022 में 1.05 बिलियन टन ऑफ राइस वेस्टेज हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 19% है। तो इसे देखते हुए 1/5 फूड ग्रेन हमारे वेस्टेज हो रहे हैं। तो इसको देख के हमने जो मुहिम चालू की है बी रिस्पॉन्सिबल, तो उसे यदि आपका सबका सपोर्ट मिलेगा तो हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू। We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. Your cell phone is actually ringing.